दिस इज अ वीडियो ऑफ मी लिटरली एन आवर बिफोर माई एग्जाम। CFA से ज्यादा इजी एग्जाम फाइनेंस में और कोई भी नहीं है। दैट इज द वर्स्ट थिंग पीपल टॉक अबाउट। 300 hours is required for income is hard, quants is hard, FSA is hard. Nothing is hard if you have given it your all. Hello everyone, welcome back. To the ones who don't know me, hi, my name is Prem Kothari. I cleared my CFA level 1 exam in August 2025 with a 90 percentile score and above 70% score in all 10 subjects. And ये वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं करेंगे because I don't want to waste your time. Plus it is 1:30 PM मुंबई की गर्मी में and you know how it is, so I have to shoot this video very quickly. We will split the video in two parts. First is going to be the mindset part and second is going to be the preparation part. I put 80 to 90% emphasis on the mindset part because preparation is something which is very personal and you have to design it according to your needs. So firstly, let us straight get into the mindset part. आई फील कि कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो उसके लिए एक सर्टन माइंडसेट चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर giving competitive exams like CFA, because it is very much different than what you have given in your 10th or 12th. I was heavily over prepared in my exam and I was so confident कि मैं clear करूंगा with a 90 percentile because I knew I put in the work. You have to tell your mind कि I don't have any option than passing this exam. My parents or I have given 1.5 lakh for this exam and I just cannot afford to fail. जहाँ पे भी तुम बैठते हो, तुम्हारा स्टडी रूम, वॉशरूम डोर, कहीं पे भी, वहाँ पे put a board or put a chart paper writing that I have paid 1.5 lakh for this exam and I don't have the option to fail or not give my best. I cannot take this casually because my parents hard earned money has got into this. You have to tell yourself कि I'm going to clear it. तुम्हें सब लोग बोलेंगे कि CFA is hard, तुम्हें बहुत सारे perceptions मिलेंगे, quants is hard, fixed income is hard, FSA is hard. ट्रस्ट मी, सब कुछ हार्ड है बट तुम्हारे लिए नहीं. यू हैव टू टेल योर माइंड कि हाँ सब कुछ हार्ड है, फिक्स्ड इनकम इज हार्ड, एफएसआई इज हार्ड, सबके लिए हार्ड है बट मेरे लिए हार्ड नहीं है. यू हैव टू काइंड ऑफ this won't sound good but you have to kind of disregard or discredit the exam in a way कि CFA का जो हवा बना होता है कि CFA इतना हार्ड एग्जाम है या CFA यहाँ पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ मुश्किल नहीं है. इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैंने मेरा काम किया है एंड आई एम गोइंग टू क्लियर माई एग्जाम. इन माई केस वेन एवर आई मेट माई फ्रेंड्स या जब भी मैं लास्ट के 3-4 महीनों में मेरे दोस्तों के साथ जाता था, I used to solve questions in the car back seat पे बैठ के. This was the level. I was highly focused and this is what it requires. I took my pen and my paper, I wrote down 1 to 90 and मैं solve करता था पीछे गाड़ी में बैठ के questions. मेरे केस में तो भाई mindset ही सबसे ज़्यादा काम किया है क्योंकि preparation तुम्हारी mindset पे ही depend करती है. It is very important to add a layer of motivation and mindset to everything you do. तुम काम करते हो, you have to be motivated. You have to have a certain mindset. Exam के लिए you have to have a certain mindset and nothing is difficult if you have given it your all and you have given it your all. But वो confidence के लिए you have to do your मेहनत. And now coming to the preparation and I'll tell you why कि मैं preparation में उतना कम emphasis क्यों दे रहा हूँ. Because preparation completely depends on various factors. I am going to talk about how I prepared, not about how you should prepare because it depends on various factors. Your educational background, तुम कोई job कर रहे हो या नहीं, how many hours can you give to CFA in a day, so it depends. But mindset part is very much constant in all cases, so that is why you have to first fix your mindset and प्रिपरेशन तो तुम फिगर आउट कर ही लोगे क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट ऑन पॉइंट है, यू आर गोइंग टू फिगर एवरीथिंग आउट. यू प्रोबेबली वुडंट इवन नीड दिस वीडियो बट एज अ क्रिएटर, एज अ फाइनेंस क्रिएटर, माय ऑडियंस लुक्स अप टू मी व्हिच इज व्हाई आई गिव माय इनपुट्स, आई गिव हाउ आई प्रिपेयर्ड, सो तुम थोड़े से की पॉइंट्स ले सको एंड अपने जर्नी में, अपने प्रिपरेशन में वो अप्लाई कर पाओ. डोंट कॉपी इट एग्जैक्टली. तुम अपने टाइम के हिसाब से, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद अपना प्रिपरेशन शुरू करो. So I will talk about my preparation. I started prepping for my exam in November 2024 and I gave my exam in August 2025. It was in a way कि मेरा exam perfectly align हो गया and August 2025 was the earliest attempt I could give. So अगर मैं के पहले भी दे पाता तो मैं दे देता क्योंकि मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था and I feel 6 to 8 months is enough. All the once again, मेरे को प्रिपरेशन का बारे में बात करना उतना पसंद ही नहीं है क्योंकि उसके पहले से उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं. प्लस ऐसा बोल ही नहीं सकते कि 300 hours. That is the worst thing people talk about. 300 hours is required for the exam. Yeah, you need to prepare for 6 to 8 months. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. 2 महीने में भी पढ़ के हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है पढ़ने में. So it completely depends. वो तुम कोई तुम्हें बोल नहीं सकता, वो सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो. We will talk about how I prepared. So I started prepping. I took my classes from Anurag Agarwal sir. I prefer online classes more than offline. We will make a separate video on that. So firstly I did my lectures and I preferred कि मेरा जो portion है वो exam से at least 2-3 महीने complete हो जाए, so I can do multiple revisions like a G. मुझे यही था कि जो best possible strategy हो सकती है, मेरे तरफ से जो best possible inputs हो सकते हैं वो मैं करूँ. So I did
मल्टीपल रिविजन्स, आई सॉल्व्ड मल्टीपल क्वेश्चंस। एज आई सेड कि मैं दोस्तों के साथ जाता था कार में, तभी मैं बैक सीट पे बैठ के मेरे नोटबुक और पेन पे क्वेश्चन सॉल्व करता। एंड दिस इज हाउ क्रेजी आई वाज फॉर माय एग्जाम्स। यू डोंट नीड टू बी दैट, बट मेरा गोल था कि आई वांटेड टू स्कोर मोर देन 90 परसेंटाइल, व्हिच आई डिड। सो again it depends on what your job is, what you are doing with your CFA, तुम्हारा कॉलेज में अटेंडेंस है कि नहीं, क्योंकि मुझे कॉलेज में तो अटेंडेंस भी नहीं था। So these are the factors you should consider, but fix your mindset before anything else. Go for Schwezer, you don't need the core curriculum. लास्ट में when you are revising, लास्ट में तुम core curriculum के जो questions है सिर्फ वो रेफर कर सकते हो। एथिक्स के लिए तो स्पेशली वो करना ही, एंड बाकी सारे जो मेन सब्जेक्ट्स है FSA, फिक्स्ड इनकम, इकोनॉमिक्स, क्वांट्स, ये सारे के लिए भी इफ यू कैन गिव टाइम टू कोर मटेरियल देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि कोर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं एंड वही क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ऑल्दो आई एम नॉट कमिटिंग बिकॉज ऑब्वियसली एथिक्स। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पोर्टल है तुम्हारा उसके तुम क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 बार करो, एटलीस्ट, इससे कम तो जाना ही नहीं है, 3 बार तो मिनिमम करनी ही है। CFA के जो मॉक्स है, 2 मॉक्स, वो आपको 2 या 3 बार अच्छे से करने हैं। यू हैव टू रिव्यू। एक गलती जो बस मैंने की थी वो कि मैंने मेरी मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं किया। यू हैव टू हैव अ मिस्टेक शीट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम मल्टीपल बार फंबल करते हो, जहाँ पे तुम बहुत बार गलती करते हो एंड तुम उसे एक्नॉलेज भी नहीं करते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन पे तुम बार बार अटको, उसको नोट डाउन करो एंड उस पर ज़्यादा ध्यान दो एंड तुम्हारे एग्जाम के पहले उसको देखो कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में गलती की थी। सो एग्जाम डे पे आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड। लेक्चर्स 1-2 बार तो आप देख लोगे, बट खुद से रिवाइज करना, खुद से पढ़ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जितनी बार आप खुद से श्वेजर पढ़ते हो या खुद के नोट्स बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू इट इफ़ यू कैन। खुद के नोट्स पढ़ना, श्वेजर पढ़ना, खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग करना। तुम्हारे जो लेक्चर्स है उसको 2-3 बार देख के कोई भी पॉइंट नहीं है। यू आर काइंड ऑफ रिड्यूसिंग योर थिंकिंग कैपेसिटी वेयर यू नीड अ मेंटर फॉर एवरीथिंग। तुम्हें थोड़ा खुद से भी करना है, क्योंकि आई फील तुम खुद से जब पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो ज़्यादा क्लिक हो जाता है। येस, फॉर द फर्स्ट टाइम यू नीड द बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग फॉर विच यू नीड अ बेस्ट पॉसिबल मेंटर। सो वो कर लो, बट 2-3 बार से ज़्यादा लेक्चर्स मत देखो, खुद से पढ़ो, क्योंकि 1-2 बार में ही तुम्हारे माइंड में वो घुस जाना चाहिए एंड उसके बाद सिर्फ लाइट रिविजन्स करो। CFA को अप्रोच करने का माइंडसेट ही बहुत लोगों का गलत होता है, जिसके बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे कि हाउ कैन यू अप्रोच CFA कि तुम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओ एंड तुम अपना एग्जाम 90 परसेंटाइल से क्लियर कर पाओ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम, ट्राई टू गो फॉर द 90 परसेंटाइल एंड दैट इज़ हाउ यू शुड टारगेट बेसिकली। क्योंकि अगर तुम 70-80% एक्यूरेसी, 70-75% एक्यूरेसी का सोच के जाओगे, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ एंड यू गो इन द 65-60% एक्यूरेसी ब्रैकेट, तुम्हारा एग्जाम फेल हो जाएगा। बट इफ़ यू गो विद द थॉट कि मुझे 90-95% एक्यूरेसी लानी है, तो जाके 85 आएगी, तो जाके 80 आएगी। सो गो विद द best possible confidence, go with the best possible preparation, go with the best possible plan, and that is how you can clear your exam, that is how you can ace your exam. Fixed income is hard, quants is hard, FSA is hard, nothing is hard if you have given it your all. ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते। It is very important once again to add a motivation or a mindset layer in everything you do. CFA कुछ भी नहीं है, FRM कुछ भी नहीं है, CA कुछ भी नहीं है, कोई एग्जाम इतनी बड़ी नहीं है अगर तुमने अपना सब कुछ उसमें दे दिया है। बी हाईली कॉन्फिडेंट ऑन योर एग्जाम डे बिकॉज देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैनॉट डू। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं मुझे इंस्टाग्राम DMs में पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे डाउट्स है CFA को लेके, उस पर कलेक्टिव अगर कुछ हुए तो उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। आई नो देर आर सम मिस्टेक्स विच CFA और फाइनेंस स्टूडेंट्स मेक, हम उस पर भी अपस्किलिंग पार्ट पे भी आएंगे, माइंडसेट पार्ट पे भी आएंगे, CFA के एग्जाम पार्ट पे भी आएंगे। हमें सब कुछ तुमको इस चैनल पे एकदम कंप्लीटली प्रॉपर कवरेज दूंगा, सो यू कैन have this smooth journey in finance or CFA or life in general. So do follow me and I will see you in the next video.